اور والد کی مدعیت میں ہم نے FIR درج کر لی ہے اور ابھی اس کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے. وہ جو اس کی والدہ ہے جس کو اس نے اپنی اپلیکیشن میں ملزمہ ڈکلیئر کیا ہے, اس سے ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے. جس کو میں نے اپنی کوکھ سے جنم لیا, میں اس کو مار رہی ہوں اور اس بہمانہ طریقے سے مار رہی ہوں کہ وہ موت کی ہوش میں چلی گئی ہے. کیا لنگر چکلی کے وہ جو کھڑپینچ ہیں, جو نمبردار ہیں, جو وڈیرے ہیں وہاں کے جو بنے ہوئے, کیا وہ اللہ کی وہ اس قہر الہی کو وہ دعوت نہیں دی انہوں نے؟ کیا وہ اس اللہ کے غضب سے, اللہ کے قہر سے بچ سکیں گے کیا؟ مقدمہ علت نمبر 200/23 تھانہ پولیس کھوئی رٹا 13/8/2023. نام سکونت اطلاع دہندہ مسعود احمد والد احمد دین قوم گجر ساکن لنگر چکلی کھوئی رٹا. آزاد پینل کوڈ کی دفعہ 302 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا. بام کام لنگر چکلی فاصلہ 11 کلومیٹر بجانب مشرق. باخدمت جناب SHO تھانہ پولیس کھوئی رٹا جناب عالی گزارش خدمت ہے کہ سائل لنگر چکلی کا سکونتی ہے اور سائل محنت مزدوری کرتا ہے. سائل شادی شدہ ہے. سائل کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں. سائل کی شادی مسماتا راہیلہ دختر محمد صادق قوم گوجر ساکنہ دہ کے ساتھ تقریباً 15 سال قبل ہوئی. مورخہ 13/8/2023 بوقت دن کا واقعہ ہے کہ سائل حسب معمول بسلسلہ محنت مزدوری باہر گیا ہوا تھا. سائل کی عدم موجودگی میں سائل کی بیٹی ماہم بعمر 6 سال کو سائل کی زوجہ قریبی آرمی کے ہسپتال میں لے کر گئی. سائل واپس آیا تو زوجہ رحیلہ نے بتلایا کہ بیٹی کو کسی زہریلی چیز نے کاٹا ہے جس کی وجہ سے مذکوریہ فوت ہو گئی ہے. سائل نے اپنی بیٹی کی تدفین کر دی. اب سائل نے تحقیق کی اور معلوم ہوا کہ سائل کی بیٹی کی موت رحیلہ زوجہ کے تشدد سے ہوئی. سائلہ کی بیٹی معصوم تھی, نابالغہ تھی. بازریہ درخواست استدعا ہے کہ مقدمہ درج کریں اور تفتیش کی جائے تاکہ اصل حقائق سامنے آئیں. سائل مکمل تعاون کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کمزور طبقے کی جاندار آواز صداقت نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ طالب حسین. ناظرین, میں ویلاگ نہیں بناتا مگر کچھ عرصے سے میں بیمار ہوں جس کی وجہ سے میں فیلڈ میں کام نہیں کر سکا. تقریباً 7 دن DHQ کوٹلی میں ایڈمٹ رہا ہوں. اس عرصے کے دوران کھوئی رٹا میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس سے انسانیت شرما گئی. ماں کیا ہوتی ہے؟ ماں کہتے ہوئے زبان میٹھی ہو جاتی ہے. ماں تو ایک احساس کا نام ہے, محبت, شفقت اور ایک ایسے سائے کا نام ہے کہ جس کے آنچل تلے انسان ساری زندگی بسر کر دے پھر بھی انسان کو وہ راحت اور وہ سکون جس کا وہ متلاشی ہے اس کی حسرت ہی رہتی ہے. ماں تو جنت ہوتی ہے. اور یہ کیسی جنت اس وادی بنا کے اندر, کیسی جنت اللہ نے پیدا کر دی کہ جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت تھی وہ جنت اپنی اولاد کی دشمن بن گئی. جی ہاں ناظرین, 13 اگست 2023 کا یہ واقعہ ہے. دن 1 بجے کا. بقول جو رحیلہ خاتون ہیں ان کے شوہر مسعود احمد کا محنت مزدوری کرتے ہیں وہ, اور محنت مزدوری کی غرض سے وہ گئے ہوئے تھے. اس ٹائم ان کی بیوی نے ان کی بیٹی کو ہسپیٹل لے کے گئی جو قریب ہی آرمی میڈیکل ہسپیٹل ہے وہاں پہ, اور اس کی موت ہو چکی تھی. اور بیوی نے اپنے خامند کو یہ بتایا, رحیلہ نے مسعود کو یہ بتایا کہ اس کو کسی زہریلی چیز نے کاٹا جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوگی. والد آیا, اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا مردہ حالت میں اور پھر کفن دفن کا انتظام کیا اور بیٹی کو دفنا دیا. سوشل میڈیا کا دور ہے اور خون ناحق بولتا ہے. جب خون ناحق بولا سوشل میڈیا کے اوپر, جب اس کے بارے میں تصاویریں وائرل ہوئیں, تحریریں وائرل ہوئیں, اور میں ہسپیٹل میں تھا, میں ان تحریروں کو جب پڑھتا میرا دل خون کے آنسور ہوتا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہو گیا. یہ کیوں ایک ماں نے اپنی معصوم 6 سالہ ماہم کو کیسے کس بے دردی سے قتل کر دیا, کس طرح اس کو تشدد کیا, کس طرح اس کو بجلی کے کرنٹ لگائے. جب سوشل میڈیا کے اوپر یہ تحریریں وائرل ہوئیں, کھوئی رٹا پریس کلب کے صدر اظہر ملک انہوں نے اس چیز کے اوپر عوام علاقہ جو لنگر چکلی کے رہنے والے تھے ان سے رابطہ کیا. پھر انتظامیہ کو یہ چیزیں بتائی, انتظامیہ تک وہ سکرین شاٹس وہ ساری تحریریں پہنچائی. کھوئی رٹا پریس کلب کا کردار اس میں کلیدی رہا اور پھر انتظامیہ نے اس چیز کے اوپر ایکشن لیا. اور آج وہ خاتون جو رحیلہ ہے, جو اپنی معصوم 6 سالہ ماہم کی قاتل ہے, اس وقت وہ تھانہ پولیس کھوئی رٹا میں بند ہے. اس کے اوپر مقدمہ علت نمبر 200/23 آزاد پینل کوڈ کی دفعہ 302 کے تحت اس کے اوپر
कत्ल का मुकदमा दर्ज हो चुका है। थाना पुलिस खुरेटा के SHO इंस्पेक्टर सोहेल यूसुफ से हमने जब इस वकूवे के ऊपर उनका मौक़िफ़ लिया, क्योंकि ये मामला अभी ज़ेर तफ्तीश है और इस बहुत से हक़ाइक़ इसके सामने आने वाले हैं, तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ कुछ यूँ पेश किया। बहुत शुक्रिया, आपने एक ऐसा मामला बज़रिया सोशल मीडिया हमारे नोटिस में लाया जिस पे फौरी कार्रवाई की ज़रूरत थी। सोशल मीडिया में पे इस ख़बर के आने के बाद कि बच्ची की वालदा ने उसे तशद्दुद किया और उसके नतीजे में वो जाँ बाक हो गई, उस पे हमने कार्रवाई करते हुए उसके वालिद से रब्ता किया, उससे दरियाफ़त की। तो इस दौरान उसने एक एप्लीकेशन दी और वालिद की मदईयत में हमने FIR दर्ज कर ली है और अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वो जो उसकी वालदा है जिसको उसने अपनी एप्लीकेशन में मुल्ज़मा डिक्लेयर किया है, उससे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो अभी चूँकि इब्तदाई मरहला है, इस पर मज़ीद तफ्तीश के हवाले से राय देना शायद मुनासिब नहीं होगा। अलबत्ता FIR हो गई है, वो तफ्तीशी अमल का आगाज़ हो गया है और फर्दर इस पर जो पोस्टमार्टम, कब्र कशाई, बाकी जो चीज़ें ज़ाब्ते की कार्रवाई है वो साथ साथ हो रही हैं। सर दस्त आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि FIR दर्ज है और उसकी वालदा जो है उससे तफ्तीश का अमल जारी है। बहुत शुक्रिया। आज से 6 साल पहले जब महम पैदा हुई तो उसकी माँ ने अपनी बहन जो बे औलाद थी उसको अपनी बेटी दे दी। बेटी, एक दिन की बेटी अपनी बहन को जब उसने दी तो उसने उसकी परवरिश की और फिर आपस में बहनों के दरमियान में इस पिछली ईद के ऊपर कुछ नाचाकियां पैदा हुई। कोई दावत का अरेंज किया, इंतज़ाम किया, उसकी बहन ने कोई दावत बनाई, अपने घर में पकाई, उसने अपनी बहन को नहीं बुलाया, जिसका उस रहीला को दुख हुआ कि इसने मुझे क्यों नहीं बुलाया। फिर ईद वाले दिन उसने अपनी बेटी को अपने घर बुला लिया। महम अपनी हकीकी वालदा के पास आई, जिसको वो हकीकी वालदा नहीं समझती थी, वो अपनी खाला को ही अपनी हकीकी वालदा समझती थी। महम जब अपनी हकीकी वालदा के पास आई तो उस वालदा ने उसको वापस नहीं जाने दिया। बच्ची रोती रही, मिन्नतें तरले करती रही कि मैंने अपनी माँ के पास जाना है, मैंने अपनी मामा के पास जाना है, मगर रहीला के दिल के ऊपर उसका कोई असर ना हुआ। वो पत्थर बन चुकी थी, अपनी बेटी के ऊपर तशद्दुद करती और इस तरीके से बेहमाना तशद्दुद करती कि वो अदमुई हो जाती। मगर बच्ची थी कि बच्ची वो अपनी खाला को पकड़ती थी, जिस खाला ने उसकी 6 साल परवरिश की थी। ऐसा करते करते आखिर माँ डाइन बन गई। अपनी बच्ची को उसने उस रोज 13 अगस्त वाले दिन इतना तशद्दुद किया कि उस बच्ची की मौत वाक़या होगी। बच्ची के जिस्म के ऊपर जो तशद्दुद के निशान हैं वो आप देखें, आप साहिब औलाद हैं, जो औलाद वाले हैं, जो बच्चों वाले हैं, वो देखें। किसी गैर के साथ भी बंदा इस तरह नहीं कर सकता। अपनी हकीकी बेटी के साथ कि वो अपनी खाला के पास जाने की जिद करती थी, अपनी हकीकी वालदा उसको कितना तशद्दुद करती रही। ये तस्वीरें आपके आंखों को नम करने के लिए, आपका कलेजा छलनी करने के लिए ये तस्वीरें आप देखें कि किस तरह इस बच्ची के ऊपर बेहमाना तशद्दुद किया गया। क्या आप सोच सकते हैं कि एक माँ अपनी बच्ची के ऊपर इस तरह का तशद्दुद कर सकती है? ये कश्मीर जन्नत नज़ीर है। ये इस वादी बना, अल्लाह ताला ने इसको इस खूबसूरती से बनाया। इसमें बहती नदियां हैं, पहाड़ हैं, लहलहाते खेत हैं, घने जंगलात हैं। ये जन्नत का एक खूबसूरत टुकड़ा है। इसकी अपनी एक तहजीब, एक सकाफत है। मगर अफसोस कि इस वादी को पता नहीं किसकी नजर लग गई। ऐसा तो किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करता कि जिस तरह रहीला ने अपनी हकीकी बेटी, उसको उस बेटी के साथ जिसको उसने अपनी कोख से जन्म दिया, उसके साथ उसने इस तरह का सलूक किया। बच्ची मासूम, 6 साल मासूम बच्ची, वो क्या कर सकती थी, क्या कह सकती थी? वो रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, माँ माँ पुकारती रही, मगर अपनी हकीकी माँ उसके ऊपर किस तरीके से तशद्दुद करती है वो आप देखें। क्या ये हम अल्लाह हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी के कातल सिर्फ 4 थे। अल्लाह ताला ने पूरी बस्ती को गरकाब कर दिया, पूरी बस्ती को तबाह बर्बाद कर दिया। क्यों? कि वो उस जुर्म के ऊपर खामोश रहे थे। क्या लंगर चकली के रहने वाले वो लोग जो अपने गांव के नंबरदार हैं, जो खड़पेंच हैं, जो साहिब हसीयत हैं, उन्होंने इस कत्ल को क्यों छुपाया? इस मासूम बच्ची के कत्ल को क्यों छुपाया? क्या वो इसके बराबर के मुजरम नहीं? जितनी रहीला मुजरम है अपनी बच्ची के कत्ल की, इतने ही वो लोग भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं कि जिन्होंने इस
कत्ल को छुपाया। एक मासूम फरिश्ता सिफ्त बच्ची को आप देखें तो इंसान, कितनी खूबसूरत बच्ची, और उस बच्ची को मौत की आगोश में भेज दिया गया, मौत की नींद सुला दिया एक जालिम माँ ने। क्या उसके 3 बेटियां और 3 बेटे हैं, क्या उसके दिल में जरा सा भी तरस नहीं आया? क्या उसके दिल में एहसास नहीं जगा? क्या उसको ये महसूस नहीं हुआ कि जब वो माँ पुकारती थी और उसको वो मार रही थी, क्या उस वक्त अर्श एलाई कांपा नहीं होगा? क्या उस वक्त जो 70 माओं से मोहब्बत ज्यादा करता है वो रब नहीं उस वक्त रोया होगा? और उस माँ को जरा भी एहसास नहीं हुआ कि मैंने अपनी बच्ची को, जिसको मैंने अपनी कोख से जन्म लिया, मैं उसको मार रही हूं, और इस बेहमाना तरीके से मार रही हूं कि वो मौत की होश में चली गई है। क्या लंगर चकली के वो जो खड़पैंच हैं, जो नंबरदार हैं, क्या वो उस कहरे अलाई को वो दावत नहीं दी उन्होंने? क्या वो उस अल्लाह के गजब से, अल्लाह के कहर से बच सकेंगे? क्या उनके घरों में उन बेटियां नहीं है, उनकी माएं, उनकी बहनें नहीं है? क्या ये कर्ज जो उन्होंने इस जुर्म को, एक कत्ल को छुपाया, एक मुसलमान का कत्ल, एक इंसान का कत्ल, पूरी इंसानियत का कत्ल है, और पूरी इंसानियत के कत्ल के ऊपर ये लंगर चकली वाले जो खामोश रहे, दुबई से ये पोस्ट वायरल हुई है, और उस वायरल पोस्ट ने पूरी दुनिया में एक कोहराम मचा दिया, एक तहलका मचा दिया। और थाना पुलिस कुरेटा ने जब वो पोस्ट देखी, जब अजहर मलिक जो कुरेटा प्रेस क्लब के सदर हैं, उन्होंने पोस्ट जब वो वायरल की, जब वो SHO को दिखाई, जो DSP को, SP को दिखाई, DC साहब को दिखाई, तो उन्होंने इस चीज के ऊपर एक्शन लिया, और थाना पुलिस कुरेटा ने उस औरत को गिरफ्तार कर लिया। उसके ऊपर आजाद पैनल कोर्ट की दफा 302 जो कत्ल का मुकदमा है वो दर्ज किया गया है। तफ्तीश जारी है, मजीद इंकशाफात और हकाइक सामने आएंगे कि इसके पीछे क्या महरकात थे और वो कौन लोग थे जिन्होंने इस कत्ल को छुपाया है। सदाकत न्यूज़ कमजोर तबके की जानदार आवाज, अवामी हकूक के ऊपर और कमजोर की आवाज के ऊपर किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी। हम हकाइक सामने लेके आएंगे और इंशाअल्लाह ताला हकाइक अवाम के सामने रखेंगे, अदारों के सामने रखेंगे। अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत दे। अपने साथी कैमरामैन रिपोर्टर के साथ मुझे इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।